क्या आप फीस देनी है या जो चार्जेस देने हैं गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को, तो वो एक अलग चीज है. आई एम लिटिल नॉट गेटिंग इनटू दैट ऑफ charges to the government side or authority side. I'm a little more on the financial side की from a strategy perspective. आप जब कंपनी और जॉब करते हो तो does that bring any change in the authorized capital? The answer is may or may not. Try and understand कि जब जनरली हम authorized capital में तब चेंज करने की कोशिश करते हैं जब हम एक्विजिशन को फंड कर रहे हैं थ्रू अ स्वैप रेशियो, यानी थ्रू एक्सचेंज ऑफ शेयर रादर देन थ्रू अ कैश. तब मेरे को जब शेयर्स इशू करने हैं, क्योंकि मुझे उस शेयर्स के जो मैं कंपनी खरीद रहा हूँ उसके बदले में नए शेयर्स देने हैं, तो वहां मुझे और शेयर्स मार्केट में उठाने पड़ेंगे या क्रिएट करने पड़ेंगे. दिस इज वेयर generally what we do, we go and get those authorized capital amended or increased to accommodate those additional shares. Generally अगर मैं फंड कर रहा हूँ through debt which is LBO transaction, या मैं अगर फंड कर रहा हूँ through my cash balance sitting on my balance sheet, generally I've seen in last 14-15 odd years is generally हम लोग authorized capital पे नहीं change करवाते. And if it is a unlisted company, then again we need not to go for this. No, it doesn't matter. This has nothing to do with listing or unlisting. ये जो concept मैंने आपको बताया सेम है, irrespective whether it's listing or unlisting. Okay. क्योंकि लिस्टिंग और अनलिस्टिंग से ऑथराइज कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. जो फर्क पड़ने वाला वो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में पड़ने वाला है. ऑथराइज कैपिटल इज अ वैल्यू ऑन द फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू चाहे लिस्टिंग हो चाहे अनलिस्टेड, दोनों का. My question was that you said now if it is a listed company, again we have to issue more shares and all that under shares. No, I didn't said listed company. I said अगर एक कंपनी ऑथराइज कंपनी, एक कंपनी है और वो रजिस्टर हुई है लेट्स अज्यूम विद 100 शेयर्स, और मुझे एक कंपनी को एक्वायर करना है बाय इशूइंग मोर शेयर्स, तो whether I am a listed company, whether I am unlisted company, दोनों ही केस में मुझे शेयर्स तो इशू करना ही पड़ेंगे, and I need to amend my authorized capital if those additional shares are going beyond the limit defined in my board resolution or my AOA. Okay. Understood. Check. We can move ahead. Any other question? ठीक है. So I think लास्ट हमने एप्टीट्यूड डिस्कस किया था. सो एप्टीट्यूड में कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज any doubt in those themes topics that we discussed last time. मैंने आई थिंक आपको परसेंटेज कराया था, प्रोबेबिलिटी कराया था, कुछ स्पीड वॉल्यूम वो सब हमने किए थे. तो उसमें कुछ क्वेश्चन डाउट किसी का है? एनीबडी वांट्स मी टू डू रिकैप? एनीबडी जो मुझे वो टॉपिक्स में कोई अगर डाउट है कि उस टॉपिक को दोबारा बता दो, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट पार्ट था जो हमने किए थे. तो उसमें किसी को कुछ पूछना है तो मोर देन हैप्पी टू लुक एट दैट पार्ट, गिवन आपका एप्टीट्यूड का लास्ट सेशन है आपका. सो कुछ पूछना है उस पार्ट में तो बताइए. फजलूर, अगर तुम बोल रहे हो तो आई कांट हियर यू. आप शायद अनम्यूट पे हो, बट आई कांट हियर एनीथिंग इन केस यू आर स्पीकिंग. No? ठीक है. लास्ट टाइम सो एप्टीट्यूड में कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है?
Sorry, I can't hear anybody. Am I audible? Yes, loud and clear. Okay. Okay. So I take that silence as no doubts. Okay. So I will move to then next scheduled topic, which is equity research. So now, before we get into this, what is equity research? So let's first understand that. Anji, anybody, what is equity research? What's your understanding of this concept as equity research? Anji. Any views, any idea? This what I can gauge out of this equity research is that whatever you want to buy is from any company, what we can analyze through their financials. This is applicable for M&A part also, to understand this business and financials of this company, target company, and it can be used for this making a buy or sell decisions on this. As per my understanding, I believe that it is a research on how the equity shares, probably the listed companies, are behaving as per the changes in the financials of the company or the market and economic scenarios. Okay. Anybody else to add to this? It also depends upon the demand supply of this equity part, because on daily basis, when we see that if we see one of the share, the P&L doesn't change, the financial doesn't change, such information doesn't comes to the market. But still, there is an up and down movement of shares, value of the shares. Yeah. Okay. Last time, any other point anybody wants to add? Okay, so yeah, so equity research is so let me break this. So equity research has two, it's a combination of two words: equity, which is shares, and research. Research is gathering information. You go out and find an information. Now again, this research could be Fazul, I can't hear you. I don't know about the. So anybody, any of you, are you able to hear Fazlu? I saw some message from him. आप इसको सुन पा रहे हैं उनको? No. So हेलो हाँ फजलू, अब सुन पा रहे हेलो सर, मेरा ये अब सुन पा रहे हो सर? Yeah, you're audible now. ठीक है सर, चलो सर मैं बाद में पूछ लूंगा.
टू इक्विटी से स्टार्ट होगा। ठीक है सर। बोलो बोलो। नहीं सर, रिगार्डिंग एनुअल रिपोर्ट से था, इस वजह से। हाँ, कुछ ये हाँ स्टार्ट कर बोलिए, दो सर, मैं बात। बोलो बोलो। तो मेरा ये था कि जो एनुअल रिपोर्ट में जो है पीएल अकाउंट हुआ या बैलेंस शीट हुआ, उसका जो फॉर्मेट है बहुत बहुत लॉन्ग टाइम में है, तो उसे कंसाइज कैसे करेंगे? उसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाया है? बट कंसाइज क्यों करना है? तो उसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाए? तो तुम्हें पीएनएल बनाना कहाँ और क्यों बनाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फोरकास्टिंग के लिए। अच्छा, फोरकास्टिंग के लिए। तो फोरकास्टिंग के लिए जो कंसाइज फॉर्मेट तुम्हें चाहिए, तो वो तो तुम्हें दिया है ना क्लास में जब बनवाया था तुम्हारे पास, वो कंसाइज फॉर्मेट नहीं है। तो सर बट उसमें उस हाँ फॉर्मेट में हाँ। और इस फॉर्मेट में बहुत डिफर हो जा रहा है, क्योंकि इसका जो है बहुत लॉन्ग प्रोसेस है पीएल अकाउंट का लॉन्ग फॉर्मेट। प्रोसेस मतलब मुझे समझ नहीं आया। लॉन्ग प्रोसेस मतलब आपको पीएनएल जो दिया है, पीएनएल में होता क्या है? पीएनएल में आई हैव सेल्स, फिर देन आई हैव रेवेन्यू माय होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन आई हैव माय एबिटा। यस सर। एबिटा में से मेरा का डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स, ये माइनस होता है। तो ये फॉर्मेट है आपका। अब इसमें आपको यस अगर सर। डिटेल में चाहिए तो आप ब्रेकअप डालते हो, नहीं ब्रेकअप चाहिए तो नहीं। सो दिस इज व्हाट सेल्स, देन यू हैव ओपेक्स। ठीक ओपेक्स है। होता है प्लस ये। यस सर। ओपेक्स होता है, बिडा होता है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस इस तरह का होता है। तो बस व्हाट डेप्रिसिएशन सर है, पीएल अकाउंट। मैं अलग अलग नहीं लिख रहा। तो जैसे डेबिटा, डेप्रिसिएशन हट जाएगा तो ईबीआईटी आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट हट जाएगा तो पीबीटी आ जाएगा। तो ये आपका पीएनएल है। अगर आपको कंसाइज फॉर्मेट चाहिए तो ये कंसाइज फॉर्मेट है। यस सर, कंसाइज फॉर्मेट पता है, बट ये जो एनुअल रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, हम्म। फॉर्मेट वो बहुत लॉन्ग है। उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम्स भी है, तो उसको कहाँ मैं एडजस्ट करूँ? एक्सेप्शनल आइटम्स हमने एक्सेप्शनल। क्लास में, मॉडलिंग में नहीं पढ़ा है क्या फजलूर, कैसे करते हैं? तो मैं ये कर रहा हूँ, अदर इनकम पहले मेरे क्वेश्चन का हुआ, ये आंसर सब हुआ, करो। ये पीएल। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर यस करो सर। फजलूर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यस सर। आइटम्स की मॉडलिंग हमने पढ़ी है, हाँ या ना? हाँ सर। पढ़ी है, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये क्वेश्चन फिर उस पार्ट से कवर हो जाना चाहिए ना। तो सर ये पीएल अकाउंट में जो जा रहा है एक्सेप्शनल आइटम्स का जो है, ये हाँ बहुत सारा, उसमें एक्सेप्शनल आइटम में बहुत सारा है। क्या आप हाँ। स्क्रीन थोड़ा शेयर करोगे सर? स्क्रीन मैं शेयर ही है ना। स्क्रीन शेयर हो है। जस्ट मिनट सर, एमएस पे करना सर, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, वाले मुझे पर। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा फजलूर। आप जो एक्सेप्शनल आइटम्स बोल रहे हो, एक्सेप्शनल आइटम्स का या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का क्या ट्रीटमेंट करना यस है सर, व्हेन वी डू फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग, वो हमने किया है। और जो तुम वो क्वेश्चन हमने पूछ रहे किया हो, है। हम्म, वो भी हमने किया है कि उसको पीएनएल में कहाँ पे फिट करना और कब फिट करना है। यस तो सर। अगर तुम वही क्वेश्चन वहाँ दोबारा पूछ रहे हो तो वो सेशन देख लेना। उसके ओवर एंड अबव को डाउट है तो पूछो। तो वही तो क्वेश्चन है कि उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, फिर अदर इनकम को हम कहाँ हम्म। पर, वो वहां पर फिट करें? ठीक है, तो ये हमने फिट किया है, ये कहाँ आप पर? देखना। उसके लिए हमने दो उसके पार्ट लिए करे हैं। उस, हमने उसके दो लिए पार्ट करे अलग हैं। से मुझे शेड्यूल बनाना पड़ेगा, या फिर मुझे इसके लिए करना पड़ेगा? क्योंकि अदर इनकम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का जो पार्ट है, कुछ हाँ पार्ट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा, हाँ। ठीक है। कुछ पार्ट को। हाँ। तो फिर मुझे मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एक बहुत एक अलग से शेड्यूल बनाना पड़ेगा, या फिर सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेकर के मैं उस पर ये कर दूं रीजनल अकाउंट में? फेयर पॉइंट है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम्म, मॉडलिंग का जो सेशन है ना, वो देख लेना। उसमें आपको दोनों पार्ट मिलेंगे। एक आप पूछ एक ही पार्ट रहे हो, पर उससे इंपॉर्टेंट पार्ट एक और भी है कि मुझे उसकी मॉडलिंग करनी है कि नहीं करनी, पहले वो देखो। और अगर आपका आंसर उस पर हाँ आता है तो उसको कहाँ पे फिट करना है, और जो आप शेड्यूल पूछ रहे हो या पीएनएल में कहाँ फिट करना है, कैसे करना है, वो पार्ट आपको मिलेगा। तो वो दोनों वहां देख लेना। उसके ओवर एंड अबव जो क्वेश्चन हो फिर वो पूछो। और कुछ? तो सर, तो इसका तो अगर अगर स्टैंडिंग अलाउंट जो है इसका पीएल अकाउंट,
इसमें तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स सबका तो पीएल अकाउंट में दे रखा है। ओके, फिर दे रखा है उसका, तो उसके बेसिस पर उसका प्रॉफिट भी आएगा उसके। अगर हम उसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो उसका प्रॉफिट में भी डिफर आएगा, पीएल अकाउंट भी डिफर आ जाएगा। ओके, फिर द क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि क्या डिफर पीएल अकाउंट बनाया जाए या फिर सेम क्वेश्चन एनुअल रिपोर्ट के। तो अभी ये क्वेश्चन पूछा तो है आपने, मैंने आंसर किया तो है, उसी को दोबारा पूछ रहे हो क्या? तो वही तो मैंने अभी आंसर किया भाई कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का बनाना है कि नहीं बनाना, और बनाना है तो फर्स्ट पार्ट इज बनाना है कि नहीं बनाना, सेकंड पार्ट अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, ये दोनों हमने किया है। अगर वो सेशन आपने मिस किया है या याद नहीं है, वो सेशन आप देख लो एक बार, वो तो आपके रिकॉर्डेड अवेलेबल सेशन है। उसको देखने के बाद जो डाउट है वो पूछो। अरे सर याद है वो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कि अच्छा, क्या पीवीएस से कैसे कैसे? तो उसमें क्या चीज है आपकी जो कवर नहीं हुई, वो डाउट पूछो आप। जो दोनों क्वेश्चन पूछे वो तो उसमें कवर है, मैं तो एग्जाम्पल देके भी समझाया था उसमें। कि पीवीएस कुछ ऐसे अगर 10 to 15 ईयर से अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चलता आ रहा है तो उसका करना चाहिए। अगर नहीं है, अब नॉर्मल लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा, बस इतना ही था? यस सर, बस इतना ही था? एक फ्लो एक्स्ट्रा चार्ट ऑर्डिनरी नहीं था? आइटम का था। चलो आप हजूर देख लो सेशन, ठीक है? फ्लो चार्ट उसका था, मैंने भी टेस्ट किया था सर। और इसका इसका तो भी नहीं हजूर। अच्छा ठीक है, क्या डाउट तुम्हारा, क्वेश्चन तुम्हारा यही है ना, करना क्या है उसका? अगर तुम्हारे को वो क्वेश्चन में आंसर यस आ जाता है तो अदर इनकम करके यहाँ पे एक आइटम आप ऐड कर दो। अदर इनकम तो ऑलरेडी अलग से है ही सर, जिसमें उसी में इंटरेस्ट ऐड होगा रिसीव ना, हुआ ये उसी सब। में ऐड होगा, उसी में ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम करके उसी में ऐड होगा। अगर आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नॉन ऑपरेटिंग है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ऐड होगा। अगर ऑपरेटिंग है या आपके रेवेन्यू में, जैसे अभी कोविड है, ठीक है, तो लेट्स अज्यूम अगर आप यस सर। आपने सेशन को देखा नहीं है वैसे अच्छे से, बट ठीक, अगर जैसे कोविड है और लेट्स अज्यूम एक फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी, और वो फार्मा कंपनी वैक्सीन बना रही है या लेट्स अज्यूम सैनिटाइजर बना रही है। सैनिटाइजर का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स अज्यूम कंपनी जो स्टार्टिंग से सैनिटाइजर बना रही थी, वो 10 साल पहले भी सैनिटाइजर बना रही थी और कोविड में भी सैनिटाइजर बना रही है। तो कोविड की वजह से जो उसकी सेल्स में इंक्रीज आया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के बावजूद वो ऑपरेटिंग इनकम में ऐड होगा। बट लेट्स अज्यूम आप रियल एस्टेट में डील करते हो, और रियल एस्टेट में डील करते हो और आप को कुछ ऐसा इनकम आया है जो आपका नॉन ऑपरेटिंग है। लेट्स अज्यूम आपको कोई एफडी पे कोई बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल गया, अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो ये दो क्लासिफिकेशन वहां पे कराया था, एक फ्लो चार्ट बनवाया था, ठीक है? उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग। कोई डाउट फिर इसमें? नो सर। अब तुम्हारी कोई क्वेरी जो रिजॉल्व नहीं हुई है मुझे बताओ। फिर भी सर तो इसको एनुअल रिपोर्ट में तो अलग अलग तरीके से कर रखा है। ठीक है, तो वो तो कंपनी एक्ट के हिसाब से जो फॉर्मेट है उसमें अलग अलग कर रखा है, तो उससे हमें कंसर्न क्या है? आप यही जानना चाहते हो ना कि वो अलग जो कर रखा है उसको मैं पीएनएल में कैसे लेके आऊं अपनी फोरकास्टिंग के लिए, वही क्वेश्चन था ना आपका? यस सर। तो वो बता तो रहा हूँ कि वो लेके ये आना है। अगर ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग इनकम में ऐड करूंगा, अगर नॉन ऑपरेटिंग है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ऐड करूंगा। और अगर वो फ्लो चार्ट के हिसाब से अगर वो ऐड नहीं करना बनता तो मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं इग्नोर करूंगा। और कुछ? नो सर। ठीक है, चलिए। सो हाँ, हम इक्विटी रिसर्च डिस्कस कर रहे थे। सो
it's a combination of equity and research. So research, equity means shares, and research means gathering information.